Hello students, today we are starting a new topic, that is machine overhead. Machine overhead is one of the method of allocating factory overheads, and this method is primarily used by those manufacturing concern whose entire production process is dependent on machine, or there is very little scope of labor resources in the production process. The expenses which is included in the factory overheads is divided into two parts. The first, it is fixed part, and the second, it is variable part. The fixed expenses, or we call it in machine overhead, that is standing charges. It is those expenses which does not vary with the change in the production. It includes rent, rates, supervision, depreciation, etc. And these expenses are included for a particular period, and it is divided by the total machine hour for that particular period. The second, it is variable expenses or machine expenses, or we call it as a running and maintenance expenses, which varies with the change in the production, and like power, repairs, maintenance, etc. And these are considered by dividing the total working hours for the particular period, and it is shown at the per hour cost of variable expenses. So in this method, actually, when we talk about the allocating of factory overhead, there are three methods on the basis of which we allocate factory overhead. The first method, it is on the basis of the labor cost. The second method, it is on the basis of labor hours, and the third, it is on the basis of machine hour. When we talk about allocation, it means it is meant to establish relationship with the factory cost. So let's take an example that we are having a data pertaining to the production of 10,000 units. So for producing 10,000 units, the cost structure is given that the first, it is material. It is given 60,000, labor 40,000, and other direct expenses, it is 20,000. This is the total prime cost comes to how much? 1,20,000, and it is at 10,000 units. So, and the factory overhead given, it is 80,000 rupees. So the total factory cost comes for 10,000, it is 1,80,000. Now what we have to do, we have to predict the total cost or for a certain set of units or a particular units, and for that we need to allocate factory overhead to certain parameters. So there, as I had already told you, that there are three methods for allocating of factory overhead. The first method is on the basis of labor cost. So if we want to know what will be the impact of labor cost on factory overhead, so we will be establishing relationship. Our on the basis of labor cost, the factory overheads that we allocate is equal to total factory cost divided by total labor cost multiplied by 100. So it is how much? 200%. What it means? Whatever the labor cost will be predicting for the future set of activity, the factory overhead will be 200% of that labor cost. If we say that for the production of 10,000 units, the labor hour is 10,000 hours. So if you want to know that as per the labor hour, what will be our factory overhead for the future set of activity, then we will be again establishing relationship on the basis of labor hour
it is equal to how much? The total factory cost comes to how much? 80,000, and total labor hour it is equal to 10,000. So the factory overhead, it will be rupees 8 per labor hour. And the same on the basis of machine hour, the total machine hour required for producing 10,000 units, it is equal to, given in the set of example, that is machine hours required to produce 10,000 units, it is equal to how much? 4,000 hours. And on the basis of machine hour, we are allocating factory overheads. So on the basis of machine hour, the factory overhead for the future set of units, it will be total factory overheads given in the question. We took an example and there is a total factory overhead, it is 80,000 divided by 4,000 hours. So it comes to rupees 20 per hour. So on the basis of that, we will be predicting the future factory overheads for a particular unit और for a group of units. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड का, या तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे, या तो लेबर आवर के बेसिस पे, या तो मशीन आवर के बेसिस पे. और हम देखेंगे अगर फ्यूचर में हमको ये बताया कि हमको प्राइम कॉस्ट इतना है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर गिवन है, और इसके बेसिस पे हमको ये एजर्टेन करने के लिए बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. तो हम इसका यूज करके हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस सेट ऑफ एक्टिव के लिए कि हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा, या फैक्ट्री ओवरहेड्स का हम कैलकुलेशन करेंगे. तो एलोकेशन क्या है? ये एलोकेशन इट मींस एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. जो हमारे पास प्रेजेंट डेटा है उसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें फैक्ट्री ओवरहेड का मशीन आवर के साथ. और जब हम देखेंगे कि हमको फ्यूचर में कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है या नंबर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके हिसाब से हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा, ये हम पता करने की कोशिश किसके थ्रू कर रहे हैं? मशीन आवर रेट के बेसिस पे कर रहे हैं. तो ये आपका मशीन आवर रेट है. तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे इन द फैक्ट्री, देयर आर नो सिंगल मशीन, बहुत सारी मशीन होती है. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली उस मशीन के लिए टोटल कितना एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है. अगर हम बात करेंगे एक एग्जांपल के लिए कि रेंट हम पे कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का, और उस फैक्ट्री में का रेंट हम पे कर रहे हैं 4,000 रुपीज, एन एग्जांपल. और उस फैक्ट्री में टोटल हाउ मेनी मशीन्स है? देयर आर 4 मशीन्स. तो अगर उस फैक्ट्री में 4 मशीन्स है, तो ये जो 4,000 का एक्सपेंसेस हुआ है टोटल इस रेंट के लिए, वो चारों मशीन में इक्वली क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. तो अगर हमको एक मशीन का रेंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल फैक्ट्री रेंट डिवाइडेड बाय मशीन होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन. इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे. तो एक मशीन का जो एलोकेशन होगा रेंट का वो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपीज हो जाएगा. उसी तरीके से अगर लाइटिंग है तो लाइटिंग को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पेस के बेसिस पे. अगर स्पेस गिवन नहीं है तो हम लाइट पॉइंट्स, दूसरा एक होता है जो हमारे बटन होते हैं लाइट पॉइंट्स, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसको एलोकेट करते हैं. अगर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट. इंश्योरेंस भी बोलेंगे तो हम उसको देखेंगे कितना उसकी कॉस्ट है, उसके बेसिस पे उसको हम एलोकेट करेंगे उस मशीन आवर रेट में. तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. हमने यहाँ पे टोटल 3 मेथड देखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड का, बट हमारा जो चैप्टर है मशीन आवर रेट, तो हम यहाँ पे मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन हर एक क्वेश्चन में करेंगे. तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसमें आपका जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आपको वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा कि उसका फॉर्मेट हमको कैसे बनाना है, उसको कैसे सॉल्व करना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मशीन आवर रेट का. आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. उस लिंक को आपको क्लिक करना है और क्वेश्चन डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ लेना है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग लिया कंप्यूटेशन ऑफ
machine hour rate, that is particular amount rupees for hour। तो हमारा ये 3 कॉलम रहेगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए स्टैंडिंग चार्जेस और बी है हमारा मशीन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने ड्यूरेशन का हमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट मशीन आवर रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन ए फॉर जून 2011। तो यहाँ पे एक महीने का इंफॉर्मेशन को हमको यूज करके मशीन आवर रेट निकालना है। जो मंथ है वो हमारा है जून। फॉर द मंथ, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस पर्टिकुलर मशीन में टोटल कितने मशीन आवर्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वर्किंग आवर्स इन जून 2011 इट इज हाउ मच, इट इज गिवन 100 आवर्स। तो उस पर्टिकुलर मंथ में जो मशीन है कितने आवर वर्क हुई है, वो 100 आवर्स वर्क हुई है। ठीक है, अब हम जो स्टैंडिंग चार्जेस कंप्यूट करेंगे सबसे पहली बात वो हमारा कितने मंथ का होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। अगर कुछ ईयरली डेटा दिया हुआ है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 12 करके यहाँ पे उसको मंथली डेटा को लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन का यूज क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन का यूज रहेगा डेप्रिसिएशन निकालने का। आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी मशीन की जो लाइफ है वो ईयर्स में दी हुई है तो हम उसको स्टैंडिंग चार्जेस में इंक्लूड करेंगे, और अगर टोटल लाइफ उसकी आवर्स में दी हुई है तो हम उसको मशीन एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस इसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 10,000, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2,000 रुपीज, और जो वर्किंग लाइफ दी हुई है मशीन की वो दी हुई है 5,000 आवर्स में दी हुई है। यहाँ पे जो लाइफ है वो किस पे मेंशन है, आवर्स में मेंशन है। आवर्स में मेंशन है तो हम जो डेप्रिसिएशन होगा उसको स्टैंडिंग चार्जेस में नहीं लिखेंगे, उसको कहाँ पे लिखेंगे, मशीन एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन पर आवर इट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 रुपीज, स्क्रैप है 2,000, और जो वर्किंग लाइफ दी हुई है, वर्किंग लाइफ दी हुई है 5,000 आवर्स। तो हमने डिवाइड किया तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इट कम्स टू रुपीज 1.6 पर आवर। तो एक आवर के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आया, 1.6 आया। तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, मशीन एक्सपेंसेस में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्रिसिएशन और पर आवर निकाला है। तो आपको याद रखना है जो भी मशीन एक्सपेंसेस रहेगा उसको आपको पर आवर कंप्यूट करना है और उसको पर आवर की कॉलम में लिखना है 1.6। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो दिया हुआ है रिपेयर्स एस्टिमेटेड ओवर द इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, मतलब जितना मशीन की लाइफ है उतनी उसकी पूरे मशीन की लाइफ में कितने रिपेयर का एक्सपेंसेस आएगा वो हमको दिया हुआ है 2,500। रिपेयर को हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, मशीन एक्सपेंसेस में। टोटल रिपेयर कॉस्ट कितना है 2,500 डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 5,000 इसलिए क्यों किया हमने, क्योंकि रिपेयर बोला है इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, मतलब पूरे मशीन की लाइफ में कितना रिपेयर का एक्सपेंसेस आने वाला है वो दिया हुआ है, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 5,000 किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 0.5। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस ऑन द मशीन फॉर जून 2011। डायरेक्टली एक मंथ का पूरा स्टैंडिंग चार्जेस को कंप्यूट करके हमको दिया हुआ है वो कितना 100 रुपीज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और ये फॉर जून 2011 इट इज हाउ मच 100 रुपीज।
तो हमने टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखा। आप क्या रखना है, स्टैंडिंग चार्जेस आपको पीरियड का कंप्यूट करके टोटल उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखने हैं। पूरे जब हमारे पास पूरे स्टैंडिंग चार्जेस आ गए तो उसका टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय अगेन मशीन आवर्स करेंगे। लास्ट दिया हुआ है पावर यूज्ड बाय द मशीन। तो पावर इट इज ए मशीन एक्सपेंसेस, तो हम मशीन एक्सपेंसेस में लिख रहे हैं पावर। और पावर का जो एक्सपेंसेस है वो कितना दिया हुआ है, वो गिवन है 10 यूनिट्स पर आवर। तो मशीन ने एक आवर में 10 यूनिट कंज्यूम किए और 10 यूनिट के हिसाब से एक यूनिट का पैसा दिया हुआ है 20 पैसे। तो एक आवर का टोटल पावर का एक्सपेंसेस कितना हुआ, यूनिट्स कंज्यूम दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट। पर यूनिट रेट कितना है 0.20। तो 10 को हमने 20 पैसे से डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना ₹2। अब हम देखते हैं, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो अब हम स्टैंडिंग चार्जेस है क्या करेंगे, लास्ट टोटल करेंगे। ये हमारा आ गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इट इज 100। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस पर मशीन आवर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। तो टोटल मशीन आवर्स कितना है, टोटल मशीन आवर्स कितना है 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया ₹1। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस को हमारे मशीन एक्सपेंसेस से प्लस करेंगे और ये हमारा जो लास्ट आंसर आएगा ये हमारा आंसर होगा मशीन आवर रेट। एक मशीन को चलाने में, 1 घंटा चलाने में कितना खर्चा आता है, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको टोटल कर लेते हैं तो इट इज 5.10। दिस इज मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इक्वल टू हाउ मच, 5.10। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।